السلام علیکم، ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل ایزی لا لیکچر سیریز۔ آج ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ چلتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پراپرٹی رجسٹریشن، ہم عام زبان میں رجسٹری کہتے ہیں، اور اس کا مکمل طریقہ کیا ہے، رجسٹری ہوتی کیا ہے، کن کن مراحل سے گزرتی ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ رجسٹری ہوتی کیا ہے۔ جب بھی کوئی زمین، پراپرٹی، جائیداد ایک شخص سے دوسرے شخص کے نام کی جاتی ہے تو رجسٹریشن ایکٹ کے تحت اس کو درج کروانا، رجسٹر کروانا سب رجسٹرار یا رجسٹرار کے پاس لازمی ہے۔ رجسٹری اور انتقال کے ٹاپک پہ اور ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے، اس ٹاپک پر ایک ویڈیو ہم اپلوڈ کر چکے ہیں، مزید جاننے کے لیے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں پراپرٹی رجسٹریشن یا رجسٹری کے پروسیس کی طرف۔ پراپرٹی رجسٹریشن کے مراحل میں جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ ہے فرد بیع کا نکلوانا۔ سیلر یا مالک زمین کو بیچنے کے لیے پٹواری سے بیع کا فرد نکلواتا ہے اور پٹواری سیلر کے تھمب امپریشن اور سگنیچر لیتا ہے اور سیلر کی جو پراپرٹی ہوتی ہے اس میں سے اس کو مائنس کر دیتا ہے۔ فرد بیع کیا ہوتا ہے یا دیگر ریونیو ٹرمز جو اصطلاحات جو استعمال ہوتی ہیں ریونیو میں وہ کیا ہیں، اس کے اوپر ایک تفصیلاً لیکچر اپلوڈ کر دیا گیا ہے، آپ وہاں سے بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ بیع کا فرد یہ پہلا مرحلہ ہے جس سے جو پرچیزر ہے اس کو سیلر کی پراپرٹی کے بارے میں معلومات حاصل ہو جاتی ہیں اور یہ پرچیزر کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ سیلر کی جو پراپرٹی ہے وہ کس خسرے میں فال کرتی ہے اور کس کھیوٹ میں ہے اور کس موضع میں اس کی جائیداد ہے۔ فرد بیع نکل جانے کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے وہ ڈی سی ریٹ کے تعین کا ہے۔ پٹواری فرد جاری کرتے وقت پر مرلہ کے حساب سے ڈی سی ریٹ کا تعین کرتا ہے۔ ڈی سی ریٹ لسٹ جو حکومت کی طرف سے جاری کی گئی ہے اس میں ہر خسرے کا، ہر موضع کا اور ہر جگہ کا جو ریٹ ہے وہ مختلف ہے۔ ریٹ کا تعین جائیداد کی لوکیشن کے حوالے سے کیا جاتا ہے، جیسے کہ اگر کوئی زمین کمرشل ہے یا روڈ کے قریب ہے اس کا ریٹ بنسبتاً اس زمین کے جو روڈ سے دور ہے یا نان کمرشل ہے یا ریزیڈنشل ہے اس کی نسبت زیادہ ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کسی زمین کا ریٹ 1,00,000 روپے پر مرلہ ہے اور ٹوٹل زمین 5 مرلے ہے تو اس کی ٹوٹل ویلیو 5,00,000 روپے ہو جائے گی، اور اب تمام ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی کیلکولیشن اس ٹوٹل ویلیو کے اوپر کی جائے گی۔ ڈی سی ریٹ اور ٹوٹل ویلیو کی کیلکولیشن کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے وہ ہے سٹامپ ڈیوٹی یا سٹامپ پیپر جو خزانے سے یا ٹریجری آفس سے کیسے منگوائے جاتے ہیں۔ ٹریجری آفس سے سٹامپ پیپر لانے کے لیے سٹامپ ڈیوٹی کا تعین کرنا لازمی ہے۔ اسلام آباد میں سٹامپ ڈیوٹی 4% لاگو ہے، مطلب یہ کہ ٹوٹل ویلیو کا جو کہ ہم نے پچھلی اگزامپل میں ہم نے دیکھا کہ 5,00,000 کی ٹوٹل ویلیو اگر تھی تو اس صورت میں 5,00,000 کا 4% جو کہ 20,000 روپے بنتا ہے سٹامپ ڈیوٹی ہوگی۔ مطلب یہ کہ ٹریجری آفس سے 20,000 روپے کے سٹامپ پیپر آپ نے لانے ہوں گے جو کہ رجسٹری کے لیے کم از کم مالیت لازمی ہے۔ ٹریجری آفس سے سٹامپ پیپر منگوانے کا عمل کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے چالان فارم جس کو 32A کا چالان بھی کہا جاتا ہے ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے نام فل کیا جاتا ہے، جس میں ہیڈ آف اکاؤنٹ اور اس کے بعد سیلر اور پرچیزر دونوں کی معلومات دی جاتی ہیں، اور جتنی مالیت کے سٹامپ پیپر منگوائے جائیں گے، جیسا کہ ہم نے پچھلی اگزامپل میں دیکھا کہ 20,000 روپے کے سٹامپ پیپر رجسٹری کے لیے لازمی ہیں تو وہاں پہ 20,000 روپے ویلیو لکھی جائے گی۔ یہ چالان فارم ڈپلیکیٹ ہوگا اور اس کو بنانے کے بعد سب سے پہلا جو کام وہ ٹریجری آفس جانا اور ٹریجری آفس سے سٹیمپ کروانا۔ یہ چالان جس پر ٹریجری آفس کی مہر لگی ہو یہ اسٹیٹ بینک کے ایک اسپیسیفک کاؤنٹر ہے، وہاں پہ جمع کرائے جائیں گے۔ اسٹیٹ بینک یہ اماؤنٹ وصول کرنے کے بعد اس چالان کی ایک کاپی آپ کو واپس کر دے گا، جس کو ہم دوبارہ ٹریجری آفس آ کر وہاں پہ سبمٹ کر دیں گے۔ یاد رہے یہ سارا پروسیس اسلام آباد کی حد تک ہے، کیونکہ باقی صوبوں میں اور خاص طور پنجاب میں رجسٹری کے لیے ای سٹامپ جاری کیا جاتا ہے جو کہ بینک آف پنجاب سے جاری ہوتا ہے، تو وہاں کا پروسیجر تھوڑا سا مختلف ہے۔
इंशाल्लाह बहुत जल्द पंजाब का और ईस्ट आर्म का प्रोसीजर भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। दोबारा चलते हैं टॉपिक की तरफ। अब ये चालान जमा करवाने के बाद आपको अर्जेंट, सेकेंड डे और रूटीन में स्टाम्प पेपर जारी हो सकते हैं। अर्जेंट मतलब आपको सेम डे स्टाम्प पेपर, और अगर सेकेंड डे है तो अगले दिन आपको स्टाम्प पेपर मिलेंगे, और अगर रूटीन में है तो तीसरे दिन आपको स्टाम्प पेपर मिल जाते हैं। लेकिन हालिया पॉलिसी के तहत अर्जेंट स्टाम्प पेपर के हुसूल पर पाबंदी है। यहाँ पर आपके साथ एक और इम्पोर्टेंट बात शेयर करते चलें कि कचहरी में मौजूद वसीका नवीस हजरात स्टेट बैंक और ट्रेजरी ऑफिस का ये सारा प्रोसीजर और स्टाम्प को ट्रेजरी ऑफिस से लेके आने की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और आप स्टेट बैंक और ट्रेजरी ऑफिस की सारी भागदौड़ से बच सकते हैं। पर लाने के बाद अगला जो प्रोसीजर है वो है गेन टैक्स और एडवांस टैक्स का तयन। मौजूदा हुकूमत की तरफ से फाइनेंस एक्ट में कुछ तब्दीलियाँ की गई, जिसके बाद एडवांस टैक्स और गेन टैक्स दोनों को बढ़ा दिया गया। एडवांस टैक्स और गेन टैक्स के रेट्स के बारे में और फाइनेंस एक्ट में इस अमेंडमेंट के बारे में एक डिटेल वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आप उससे भी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं एडवांस टैक्स की तरफ कि परचेज़र ने जो टैक्स पे करना है वो कितना पे करेगा। अगर तो परचेज़र फाइलर है तो वो टोटल वैल्यू का 2%, जैसा कि हमने पिछली एग्जांपल में देखा कि टोटल वैल्यू अगर हमारी 5 लाख रुपया है तो उसका 2% जो कि 10,000 रुपये बनता है, ये एडवांस टैक्स परचेज़र पे करेगा। और अगर परचेज़र नॉन फाइलर है तो यही टैक्स 7% पर चला जाएगा, जो कि एग्जांपल के मुताबिक तकरीबन 35,000 रुपये बनता है। इसके बाद आते हैं गेन टैक्स की तरफ, जो कि सेलर का टैक्स है और सेलर ने पे करना होता है। इसमें अगर सेलर फाइलर है तो उसके ऊपर 2%, जो कि एग्जांपल के मुताबिक अगर 5 लाख टोटल वैल्यू है तो 10,000 रुपये, और अगर नॉन फाइलर है तो 4% के हिसाब से वो टैक्स पे करेगा, जो कि हमारी प्रीवियस एग्जांपल के मुताबिक अगर टोटल वैल्यू 5 लाख रुपया है तो वो 20,000 रुपये टैक्स पे करेगा। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात आपके साथ शेयर करते चले कि गेन टैक्स में होल्डिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया गया है। इसका मतलब ये कि गेन टैक्स हर ट्रांजैक्शन पर लागू होगा और होल्डिंग पीरियड की वजह से सेलर को कोई छूट हासिल नहीं है। एडवांस और गेन टैक्स के हवाले से मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब देखते हैं कि गेन टैक्स और एडवांस टैक्स को जमा कराने का तरीक़ाकार क्या है। गेन टैक्स और एडवांस टैक्स को जमा कराने के लिए सबसे पहले FBR की वेबसाइट पे PSID बनाई जाती है। ये PSID एडवांस टैक्स की सूरत में परचेज़र के नाम से बनेगी और गेन टैक्स की सूरत में सेलर के नाम से बनेगी, जो कि किसी भी करीबी कमर्शियल बैंक में जमा कराई जा सकती है। इसके बाद FBR की तरफ से कंफर्मेशन मेल या मैसेज की सूरत में CPR नंबर जनरेट होता है, जो कि आप FBR की वेबसाइट से CPR निकाल के आप रजिस्ट्री के साथ लगाते हैं। PSID बनाने और CPR जनरेशन के हवाले से बहुत जल्द एक वीडियो अपलोड की जाएगी। स्टाम्प लाने और टैक्सेस जमा कराने के बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट मरहला जो आता है वो है बैनामा को स्टाम्प पेपर पर तहरीर करवाना, जो कि बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट मरहला है, और ये तहरीर वसीका नवीस से करवाना लाजमी है। और इस तहरीर का बमुताबिक फ़र्द होना और कार्ड्स के मुताबिक, ID कार्ड्स के मुताबिक नाम का दुरुस्त होना और दीगर मालूमात का दुरुस्त होना बहुत ही लाजमी है, जो कि एक वसीका नवीस की ड्यूटी है। और अगर ये तहरीर किसी आम टाइपिस्ट से अगर आप करवाते हैं तो इसमें छोटी सी भी गलती आपके लिए लाखों रुपए का नुकसान का बायस बन सकती है। इसलिए कोशिश की जाए कि DC ऑफिस की तरफ से बाकायदा लाइसेंस शुदा वसीका नवीस हजरात से रजिस्ट्री तहरीर करवाई जाए, बैनामा तहरीर करवाया जाए। रजिस्ट्री की तहरीर के बाद जो अगला मरहला आता है वो है वसीका नवीस की तस्दीकी मोहर, जो ये तस्दीक करता है कि बामुताबिक फ़र्द और बामुताबिक रिकॉर्ड उसने ये तहरीर दुरुस्त की है, और बग़ैर वसीका नवीस के कानूनन रजिस्ट्री नहीं की जा सकती। इसके बाद रजिस्ट्री का जो आखिरी मरहला है वो है तहसीलदार के सामने सेलर और परचेज़र दोनों का पेश होना और एक दूसरे के हक़ में बयान देना। सेलर
परचेज़र और गवाहान तहसीलदार के सामने अपने थंब इम्प्रेशन करते हैं और सिग्नेचर करते हैं। सेलर तहसीलदार के सामने या रजिस्ट्रार के सामने ये बयान करता है कि उसने मतलूबा रकम वसूल कर ली है, जबकि परचेज़र ये बयान करता है कि उसने ज़मीन का कब्ज़ा ले लिया है। रजिस्ट्रार ऑफिस जाते वक्त जो चीज़ें आपके पास होना लाजमी है उनमें सेलर, परचेज़र और 2 लोकल गवाहान, उनका शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल उनके पास होना लाजमी है। इसके साथ साथ जो टैक्स आपने जमा करवाए हैं उसकी CPRs आपके पास होना लाजमी है। इसके साथ साथ बै का ओरिजिनल फ़र्द होना लाजमी है और बैनामा जो स्टाम्प पेपर पर तहरीर किया गया उसकी एक कॉपी, एक्स्ट्रा कॉपी होना लाजमी है। ये तमाम चीज़ें फ़ाइल की सूरत में रजिस्ट्रार ऑफिस में ले जाने के बाद मुहर्रर सेलर, परचेज़र और गवाहान के नाम दर्ज करता है और उनके थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर लेता है। और इसके बाद सेलर और परचेज़र की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है और एक ग्रुप फ़ोटो ली जाती है। 1% रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी यहाँ जमा होती है। इसके बाद रजिस्ट्रार सेलर और परचेज़र का बयान लेता है, जिसके बाद रजिस्ट्री का अमल मुकम्मल हो जाता है। रजिस्ट्री का अमल मुकम्मल होने के बाद तकरीबन हफ़्ता या 10 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के सिग्नेचर्स के बाद और रजिस्ट्रार ऑफिस की स्टैंप होने के बाद ओरिजिनल रजिस्ट्री परचेज़र को वापस कर दी जाती है। जिसके बाद सबसे आखिरी प्रोसीजर जो कि पटवारी के पास इंतकाल का दर्ज कराना और दर्ज कराने के बाद उससे रिकॉर्ड का फ़र्द हासिल करना है। इस तरह रजिस्ट्री का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और जायदाद एक नाम से दूसरे के नाम मुंतकिल हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस, हमारे लेक्चर्स और लीगल अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आज के लेक्चर के मुतालिक आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं या क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।